Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My dear student of class 7th, today your new session 5th of congruent triangle. In previous video we discussed about the congruency ASA, angle side angle, and AAS, angle side. Today we discuss further question of this condition, this congruency condition. Now there is question number 5. In previous video we done question number 1, 2, 3 and 4. 2 is not in a course, but 1, 3 and 4. Is it clear? Now come on the question number 5. 5 पे आ जाइए. What is your fifth question? Yes. In a figure. This figure is given. A, O, B. Sorry, this is C, and this is O, and this is D, and this is B. In which given क्या क्या दिया हुआ है हमें? OA is equal to OB, that is given, and angle A is equal to angle B. Both are given. ये दोनों चीजें हमें दी हुई है कि AO इक्वल है OB के, ठीक है, और एंगल A B के इक्वल है. अब फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट क्या पूछा उसने? एंगल AOC इज इक्वल टू BOD. AOC दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? यस होगा. व्हाई? जब भी बेटे तो मैंने आपको पहले भी 6th क्लास में भी पढ़ा आपने कि जब दो लाइनें कटती है तो अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो हमने सामने एंगल बोलते हैं, दिस इज सेड द वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. सेकंड, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू BOD, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है भाई ASA प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल. यस, इट इज कॉन्ग्रुएंट, इट इज कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट है बाय बाय SAS कंडीशन. थर्ड पार्ट में उसने पूछा है एंगल्स ACO, दिस वन इक्वल टू BDO, दिस वन. यस और नोट? यस. व्हाई? बेटा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी. व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी सेज? दैट इज CPCT, corresponding part of congruent triangle. Is it clear? This is our last question of this exercise. Now come on the next condition to make the triangles congruent. Come on the next property. What is your next property? That is RHS, right angle hypotenuse. This is your right angle hypotenuse and side. That is called RHS. This is called the RHS condition. Come on this next exercise, that is worksheet 4. That is worksheet 4. चलिए. Yes. Triangle ABC is isosceles triangle. Worksheet 4. This is isosceles. What is the meaning of isosceles triangle? Those triangle whose two sides are equal. वो ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. That is said the isosceles triangle. इसमें हमें given है that is AB equal to AC. That is also given. AB equal to AC. This is given. Is AD is altitude. What is the means of altitude? बेटे altitude का मतलब होता है कि सामने से आए परपेंडिकुलर हो. सामने वाली साइड है वर्टेक्स से आए, अपोजिट साइड्स पे क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर. दैट मीन्स दिस मेक्स द 90 एंगल. 90 के एंगल बना रहे हैं. इट इज क्लियर. फ्रॉम A ऑन B से. अब आ जाइए फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन देखिए. उसने कहा इस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के. वेयर इज ABD? दिस वन, इधर वाला, ये वाला, और ACD दिस वन. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस है. उसने कहा व्हाई? देखिए बेटा, एक तो 90 के एंगल बन रहे हैं इनमें, 90 के एंगल बन रहे हैं. ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, और ये कॉमन हो गई. दिस इज कॉमन, दिस इज गिवन, और दिस इज 90 एंगल बाय RHS. देख लीजिए, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, एंड दिस इज साइड. तो बाय RHS ट्रायंगल्स आर congruent. Is it clear? Second, what is our second question? Just a minute. Yes, excuse me. Yes, next.
स्टेट 3 पेयर्स ऑफ द मैचिंग पार्ट्स यूज इन आंसर। जो आपने आंसर फर्स्ट में उसमें कहा है कि आपने कन्ग्रुएंट कहा है, उसकी वजह बता दो, 3 पेयर बता दो। वही एक पेयर तो दिस इज गिवन टू दिस वन, ए बी इक्वल टू ए सी, सेकेंड इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, दिस इज गिवन, एंड नेक्स्ट इज AD that is common. So therefore by RHS triangles are congruent. Now it is true to say BD is equal to DC. उसने कहा है क्या ये बात सही है कि BD equal DC के है? Yes. When two triangles are congruent, that corresponding parts are equal. This is called by CP/CT, corresponding part of congruent triangle. Is it clear? Explain again. उसने कहा है this is isosceles triangle. Is it clear? हेयर ए बी इक्वल टू ए सी, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ये एल्टीट्यूड यानी 90-90 के एंगल बन रहे हैं ये दोनों, ठीक है। उसने क्या कहा है कि आप पहले पार्ट में क्या ये कन्ग्रुएंट होंगे? यस होंगे। उसने कहा किस कौन सी कन्ग्रुएंसी यूज होगी? देखिए बेटा 90 का एंगल आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ठीक है, और साइड आ रही कॉमन साइड। इज इट क्लियर? दैट RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने जो सबसे बड़ी साइड राइट एंगल में होती है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें दी हुई थी। उसने कहा था सेकंड पार्ट में कि वो 3 पेयर बता दो जिसकी वजह से आप इसे RHS कह रहे हैं। तो तीसरा पेयर, 3 पेयर क्या हो गया? पहले हमें दिया हुआ था ए बी इक्वल टू ए सी, दूसरा एंगल 1, नाम दे दिया मैंने इनका एंगल 1 इनको एंगल 2, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल होंगे आपस में, नाम नेमिंग दे दी, नेमिंग दे सकते हैं हम एज इट इज, ठीक है। नाउ AD कॉमन, दोनों में बताया था मैंने, इसकी भी यही वाली साइड है AD, और इस ट्रायंगल की भी यही वाली साइड, और इस वाले ट्रायंगल की भी यही साइड है, दोनों में बीच में जो साइड है कॉमन है, ठीक है। तो हो गए 3 पेयर हमारे सेकंड पार्ट में। उसके बाद उसने पूछा क्या BD DC के इक्वल होगा? मैंने क्या कहा था, जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे साइड हो। यस हो जाएंगे, क्यों? दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी CP/CT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इज इट क्लियर माय डियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द सेकंड, आल्सो डिलीट पार्ट, डिलीट क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। What is your third question? Yes. QS and RT are the altitudes of the triangle PQR. Here, PQR. This is a triangle in which QS, this is altitude, यानी 90 का एंगल बना रहा है इस पर, और ऐसे ये भी इस पर 90 का एंगल बना रहा है। QS is equal to RT, ये दोनों 90 के, और गिवन भी है मुझे, दैट इज आल्सो गिवन कि ये दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल है। QS इक्वल दे रखा है RT के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उसने कहा इस ट्रायंगल QRS कन्ग्रुएंट RQT, देख रहे हैं आपको कौन कौन से बाई RHS से? QRS दिस वन, जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस इज अ डार्क ट्रायंगल, एंड RQT दिस इज। अभी ऊपर वाले को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ। ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसने कहा कन्ग्रुएंट है, यस है, बाई RHS यस है। क्यों? RHS कैसे लग रही? ये 90 का एंगल, इसके सामने हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन हो गई, और ये साइड उन्होंने इस साइड की इक्वल दे रखी थी। इज इट क्लियर? सो बाई RHS इट इज कन्वर्टेड, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने अगेन पूछा कि वो 3 पेयर बता दो जिससे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो चलिए 3 पार्ट हमें पता ही है, हमें पता है कि ये QS इक्वल है RT के, कहाँ से आया? गिवन था, हमें दिया हुआ था। इज इट क्लियर? दूसरा, ये एंगल T एंगल S के इक्वल है, क्यों? दिस इज आल्सो इक्वल, क्योंकि ईच 90 के, दोनों 90 के तो इक्वल होंगे भाई, और हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन थी, इस ट्रायंगल की भी यही है, उस ट्रायंगल की भी यही है, देयरफॉर QR इज इक्वल टू QR, दिस इज द कॉमन। This is 3 parts to make both triangles are congruent. Is it clear, my dear? चलिए in the next question, here is fourth question. What is our fourth question? In figure, that is A, B, C. Angle B, P, Q, R. This is given. Angle B is equal to angle P is equal to 90. Side AB equal to side PR. This is given. ये एंगल 90 है, ये साइड AB इक्वल दे रखी PR के। उनका थर्ड इंफॉर्मेशन बता दो जिससे ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है बाय RHS। क्या चीज़ है बेटा हम हमारे पास?
राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और एस है, एस है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी यूज की, एसी। सो थर्ड इंफॉर्मेशन इज मेरी उम्र इतनी है ना, मैं थक जाती हूँ, मैं तो इतना नहीं जाता। AC इक्वल टू क्यू आ, AC इक्वल टू क्यू आ। इज इट क्लियर? ये आपकी थर्ड इंफॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल दोनों बाय राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी से, कन्वर्जेंसी प्रॉपर्टी से क्या हो गए, कन्वर्जेंट हो गए। इज इट क्लियर माय डियर? So in next session we discuss about the further question of this exercise or value based question. There is a 2 value based question. ठीक है, बस वही करेंगे। ब्रेन टीचर इसकी भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ब्रेन टीचर भी इसकी भी डिलीट कर देंगे, बस यहीं तक रहेंगे हम। इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इज इट क्लियर माय डियर? थैंक यू वेरी मच।